Hello everyone. In this video, I am going to teach you accounting for not-for-profit organization. The topic is fund-based accounting. After going through this topic, you will be able to develop the understanding of concept of fund-based accounting and develop the skill of accounting treatment of general and specific funds. First of all, the general fund. In case of non-profit organizations, there is no capital account. Instead, they make a different account called the capital fund. The difference between the assets and the outside liabilities is known by the name capital fund, and the difference of income and expenditure, that is the surplus or the deficit, is transferred to this fund every year. This capital fund is also known as the general fund to distinguish it from any special fund which the organization may create for any specific purpose. Let us discuss the special funds, also known as the specific funds. The not-for-profit organizations often create special funds for certain purposes or activities such as the prize fund, match fund, sports fund, etc. Such funds are invested in securities, and the income earned on such investment is added to the respective fund only and is not credited to income and expenditure account. Similarly, the expenses incurred on such specific purposes are also deducted from the special fund. So, income is added to the fund only and the expenses incurred on such specific purposes are deducted from the fund only. For example, a club may maintain a special fund for sports activities. In such a situation, the interest earned on sports fund investment will be added to the sports fund, and all expenses related to the sports will be deducted out of it. The special funds are shown in the balance sheet. However, if after adjustment of income and expenses, the balance in the particular special fund is negative, then that balance is transferred to the debit side of income and expenditure account. Now let us discuss the fund-based and the non-fund-based accounting. Fund-based accounting refers to an accounting system in which receipt and income pertaining to a fund are credited to that fund and not to the income and expenditure account. Similarly, expenses related to that fund are charged to the fund and not debited to income and expenditure account. A not-for-profit organization maintains a separate bank account for each fund. Donation, income received towards that fund are credited to the fund account, while expenses are debited to such fund account. Credit balance in the fund account is shown on the liability side of the balance sheet, and debit balance in the fund is debited to income and expenditure account. Let us discuss some examples. The examples of the funds created for specific purposes are library fund, match fund, prize fund, sports fund, building fund, etc. Thus, fund-based accounting system keeps the income of that fund separately, and system does not affect the income and expenditure account. Now, what is the concept of non-fund-based accounting? In the context of not-for-profit organization, if all revenue receipts, I'm talking about only the revenue receipts and incomes,
are credited and all expenses are debited to income and expenditure account, then it is called the non-fund based accounting. It means no separate accounts are maintained for each fund and all incomes and all expenses are shown in the income and expenditure account only. Now these topics will be more clear to you with the help of certain practical problems. So let us discuss these practical problems. Question number 1. Show how would you deal with the following items in the financial statements of a club. So certain balances are given below in this question. Number 1 is the prize fund. Prize fund. As you can see, it is showing a credit balance 80,000 rupees. फंड जितने भी होते हैं वो हमारे लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और जब भी हमारे पास कोई रिसिप्ट आता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो रिसिप्ट आपके लिए बन जाता है एक लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कहाँ जाती है? वो जाती है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी वो हमें कहाँ लेकर जानी है? इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो ये मुझे लेकर जानी है बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अभी हमने डिस्कशन किया कि स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सभी हम उसी फंड में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अब ये पर्टिकुलर फंड कहाँ पे अवेलेबल है? ये फंड अवेलेबल है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। तो आप जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, और जो आपका ये पर्टिकुलर फंड है, जैसे यहाँ पे इसका नाम है प्राइज फंड, तो इस प्राइज फंड में आप इस इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे प्राइजेस अवॉर्डेड। तो प्राइजेस अवॉर्डेड हमारे लिए क्या हैं? ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। तो इस एक्सपेंस को मुझे क्या करना है? जैसे मैं इनकम को पर्टिकुलर इनकम जो भी मेरी होगी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड वो फंड में प्लस करूंगी तो मुझे उस फंड से जुड़े हुए एक्सपेंसेस को क्या करना है? उसी फंड से माइनस करना है। इसका मतलब मुझे जाना है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे, और लाइबिलिटी साइड में जो मेरा प्राइस फंड होगा उस प्राइस फंड से मैंने इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। लेट अस सी कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, कैसे प्रेजेंट किया बैलेंस शीट में। सो हियर द सॉल्यूशन इज गिवन। बैलेंस शीट एज ऑन आप डेट लिखेंगे। एसेट साइड पे मैंने आपको अभी बताया मेरे पास सिर्फ एक ही एसेट था। यहाँ पे दोबारा इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ए यहाँ पे एसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही जगह आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे मैंने 3 नाम एल लिखे हैं जो कि लाइबिलिटीज शो कर रहा है, तो इसीलिए एसेट साइड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा 3 नाम मैंने आपको बताया कि मैंने लाइबिलिटी साइड के लिए लिखे थे। सबसे पहले प्राइस फंड 80,000 का है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेरे पास 8,000 है तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है प्राइस फंड में। इन दोनों का टोटल आ चुका है 88,000। इसमें से मैंने अपना एक्सपेंस जो कि प्राइजेस अवॉर्डेड है विच इज़ अ नेगेटिव फिगर, इसको मैंने माइनस किया और माइनस करने के बाद मेरा जो मेन आंसर है 82,000 का जो बच गया है प्राइस फंड में वो मैंने मेन कॉलम पर, अमाउंट कॉलम पर उसको शो किया है। तो बहुत ईजी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, show the following information in financial statement of a not for profit organization। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हर एक आइटम को हमने चेक किया कि कहाँ जाना है, ये एसेट साइड पे जाएगा या लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे कि हमें दिए हैं मैच एक्सपेंसेस, तो ये मैच एक्सपेंसेस जो हैं वो इसका मतलब कि मैच से रिलेटेड होंगे। यहाँ देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई मैच फंड है। सेकेंड पॉइंट में ही आपको दे रखा है कि मैच फंड है। इसका मतलब कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड हैं। तो मैंने बैलेंस शीट में जाना है, लाइबिलिटी साइड पे जाना है, लाइबिलिटी साइड पे मैच फंड में से मैंने मैच फंड में से इन एक्सपेंसेस को क्या कर देना है? माइनस। तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस किए जाएंगे
माइनस। मैच फंड बहुत सिंपल सी बात है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। डोनेशन फॉर मैच फंड, अगर किसी फंड के लिए आपको कोई रिसिप्ट होती है, कोई डोनेशन मिलती है, तो वो उसी फंड में प्लस होती है। तो फंड कहाँ पड़ा है? फंड पड़ा है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो मैच फंड होगा, उस मैच फंड में आप इस डोनेशन को कर लेंगे प्लस। नेक्स्ट, सेल ऑफ मैच टिकट्स। अगेन सेल ऑफ मैच टिकट्स हमारे लिए क्या है? दिस इज इनकम। और इस इनकम को हमें क्या करना है? अभी हमने दोबारा इस चीज़ को देखा क्वेश्चन में भी कि इनकम्स जो होती हैं वो फंड में ही जुड़ जाती हैं। तो फंड कहाँ है? बैलेंस शीट। विच साइड? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में बहुत सारे फंड होंगे, देख लीजिएगा कौन सा? मैच फंड। तो मैच फंड में ये जो आपकी इनकम है सेल ऑफ मैच टिकट से, इसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। आइए चेक करते हैं कैसे इसका सोल्यूशन हमने दिखाया है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एसेट साइड पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा क्यों? देखते हैं। इस क्वेश्चन में जब मैंने इसको सॉल्व किया, आपको हमेशा यहाँ पे वर्ड एल 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 एंड एल नजर आया। तो चारों पॉइंट में से कोई भी रिलेटेड टू एसेट नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आपकी एसेट साइड जो है वो टोटली एम्प्टी है। लाइबिलिटीज में आपको मैंने यहाँ पे 4 नाम दिखाए। सबसे पहले मैच फंड 8,000 रुपीज़ का ऐड की हमने, इसमें जो स्पेसिफिक डोनेशन मिली थी मैच फंड के लिए 5,000। एक हमें इनकम हुई सेल ऑफ मैच टिकट को करके 7,000। इन सभी को हमने प्लस कर लिया, तो हमारा जो पॉजिटिव बैलेंस है वो 20,000 रुपीज़ का आया। इसमें से एक नेगेटिव बैलेंस था, हमारा एक एक्सपेंस था विच इज़ मैच एक्सपेंसेस, उसको मैंने माइनस किया। तो माइनस करने के बाद मेरे पास जो आंसर बचा, जो उसका नेट इफेक्ट आया, वो कितना है? 4,000 विच इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस। इसका मतलब फंड में अभी कितने पैसे बचे हैं हमारे पास? 4,000 रुपीज़। अगर सिचुएशन कुछ अलग होती, what will be the effect if match expenses go up by 6,000 and other things remaining the same? देखते हैं क्या चेंज आता क्वेश्चन में। मेरे पास मैच एक्सपेंसेस थे 6,000 और हमें कहा गया कि अगर ये 6,000 से बढ़ जाते तो क्या होता? इसका मतलब मेरे टोटल मैच एक्सपेंसेस हो जाते फिर कितने के? 22,000 के, ना कि 16,000 के। अब वो 22,000 के हो चुके हैं। तो मेरे पास जो फंड में अवेलेबल बैलेंस था वो था 20,000 और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? वो है 22,000। तो आपका नेगेटिव बैलेंस है ज़्यादा और पॉजिटिव बैलेंस है कम। तो आपका जो नेट इफेक्ट आया वो कितना आया? आपका नेट इफेक्ट आया 2,000 विच इज़ अ नेगेटिव बैलेंस। अब इस नेगेटिव बैलेंस को हमें कहाँ लेकर जाना है? इस नेगेटिव बैलेंस को हम लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन सी साइड पे जाएगा ये जाएगा हमारी डेबिट साइड पे। So you must remember, if like in this case match expenses go up by 6,000, the net balance of the match fund becomes negative. Debit exceeds the credit and the resultant debit balance of 2,000 shall be charged. Charge means कहाँ शो करेंगे इसको हम? डेबिट साइड पे of income and expenditure account of that particular year. So this is how we deal with such type of questions. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। How will you deal with the following case while preparing balance sheet of a sports club for the year ended 31st March 2020? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है हमें 31 मार्च 2020 के लिए। क्या क्या रिसिप्ट्स हैं और क्या क्या पेमेंट्स हैं, इनको भी हम देख लेंगे अच्छे से। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ लिखा है 4,000। किसी का नाम नहीं लिखा कि ये इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये हमारी एक नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड है और इसीलिए इसे मुझे कहाँ लेकर जाना है? मैं इसे लेकर जाऊंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर, बिकॉज दिस इज माय इनकम। सेकेंड आपको दिया है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। इसका मतलब ये स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पोर्ट्स फंड के लिए मिली है। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होगी वो कहाँ जाएगी हमारी? ये जाएगी बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में क्या कहाँ जाना है इसको, लाइबिलिटी साइड पे, और ये स्पोर्ट्स फंड में क्या हो जाएगी, प्लस। थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। जो भी आपको इनकम होती है किसी भी चीज़ से, किसी भी फंड से रिलेटेड, तो वो इनकम जो है वो उसी फंड में प्लस होती है। इसका मतलब इनकम रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, और स्पोर्ट्स फंड में मुझे इसे क्या कर देना है, प्लस। अब जब भी बात आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हमेशा गौर करनी है कि यहाँ मुझे लिखा हुआ है 12,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, क्या वाकई ही 12,000 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट बनता है या मुझे कम मिला है। तो इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें यहाँ पे लिखा है 10% रेट है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट का, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू दी है 1,50,000 और अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 1,20,000 बुक्स में। तो मुझे जो इंटरेस्ट निकालनी है वो किस पे निकालनी है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो 1,50,000 के ऊपर मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के देखा तो वो कितना आया, वो आया 15,000। जबकि मुझे रिसीव कितना हुआ है इंटरेस्ट, तो मैंने कितना रिसीव किया, मैंने रिसीव किया सिर्फ 12,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3,000 का। तो इस 3,000 के डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगी, दिस इज माई एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, एक्रूड इंटरेस्ट। और इस एक्रूड इंटरेस्ट को भी मुझे कहाँ लेकर जाना है, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश है, चाहे आपका इंटरेस्ट एक्रूड है, जो टोटल इंटरेस्ट होगा आपका, टोटल इंटरेस्ट, इस टोटल इंटरेस्ट को मुझे किस में ऐड करना है, पर्टिकुलर फंड में। तो फंड कौन सा था, स्पोर्ट्स फंड। उस स्पोर्ट्स फंड में मैं टोटल इंटरेस्ट को कर दूंगी प्लस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद पेमेंट साइड पे अगर हम जाएं तो स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। अब ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। इस एक्सपेंस को जैसा कि हम जानते हैं अगर इनकम फंड में जुड़ती है तो एक्सपेंसेस फंड से क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन बैलेंस शीट पे जाना है, लाइबिलिटी साइड पे जाना है, जो मेरा स्पोर्ट्स फंड था उस स्पोर्ट्स फंड में से मुझे माइनस करना है प्राइजेस अवॉर्डेड को। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट कराने में जितने एक्सपेंस हुए, अगेन सेम जैसे मैंने अभी स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड के लिए किया कि मुझे एक्सपेंसेस को फंड में से घटाना है। तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, स्पोर्ट्स फंड, और इसे कर देना है माइनस। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और जानकारी है, 1 अप्रैल 2019 में स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस था 1,20,000 रुपये। तो ये हमें दिखाना है। देखिए लाइबिलिटी साइड पे हमने स्टार्टिंग की, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस विच इज़ 1,20,000। वी एडेड डोनेशन ऑफ ₹50,000 इनटू इट, देन डोनेशन वॉज स्पेसिफिक इसलिए हमने इसमें ऐड की। देन वी एडेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। कैश में इंटरेस्ट कितना मिला था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया था 12,000 का। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा, जो कि हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया 3,000। तो ये सारे पैसे हमने एडअप किए एंड द टोटल इज 1,85,000। इसमें से मैंने लेस कर दिया स्पोर्ट्स प्राइजेस जो कि मेरा एक्सपेंस है, और एक और एक्सपेंस था एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स। तो ये टोटल जो एक्सपेंसेस थे 51,000 के, ये मैंने अपने स्पोर्ट्स फंड में से सब्ट्रैक्ट किए और मेरा जो मेन बैलेंस है वो पॉजिटिव आया विच इज़ 1,34,000। तो ये मैंने मेन अमाउंट कॉलम में शो किया। एसेट साइड पे देखते हैं अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी थी, तो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी, ब्रैकेट में फेस वैल्यू आपने शो किया, ठीक है। इसके अलावा जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये आप यहाँ पे एसेट साइड पे भी दिखाएंगे। और वैसे भी आपको ध्यान होगा क्लास 11th में भी आपने सीखा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जानकारी दी होती है वो आपको 2 जगह ले जानी है। तो यहाँ पे आपने इसे अपने स्पोर्ट्स फंड में भी ऐड किया, और क्योंकि एक्रूड इनकम आपकी बन चुकी है तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट साइड पर भी शो होगा।
तो बहुत ईजी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए हैं। So what is the conclusion? The conclusion is fund-based accounting is a technique in which separate set of assets, liabilities, incomes and expenses are maintained for each such fund. Recapitulation कर लेते हैं quickly. What is capital or general fund? Difference between assets and outside liabilities is called the capital fund, and the difference of income and expenditure is transferred to this fund every year. Now, secondly, the specific fund. These are created for certain purposes like match fund, sports fund, etc. Treatment is income earned on such investment is added to the respective fund and not credited to income and expenditure account. Similarly, the expenses incurred on such specific purposes are also deducted from the special fund. Fund-based accounting. It is an accounting system in which receipt and income pertaining to a fund are credited to that fund and not to income and expenditure account. Similarly, expenses related to that fund are charged to the fund and not debited to income and expenditure account. And last, non-fund based accounting, when no separate accounts are maintained for each fund and all expenses are shown in the income and expenditure account. Similarly, all expenses are added or subtracted in the income and expenditure account. Thanks for watching.